میں اور آپ آج کی اس نشست میں اس غرض و غایت سے حاضر ہوئے ہیں کہ چند لمحے اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر خیر میں گزارے جائیں اور ان لمحات کی برکتوں رحمتوں کو سمیٹا جائے۔ عزیزان محتشم، میں نے سورہ زمر سے ابتدا کی۔ یہ قرآن کا 39واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 73 کے الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا، جن لوگوں نے اپنے رب کے خوف میں، اپنے رب کی محبت میں، اپنے رب کے ساتھ انسیت میں اور اپنے رب کے ڈر میں زندگی گزاری ہوگی، وہ اکٹھے جنت میں جائیں گے۔ وہ اکیلے نہیں بلکہ جوک در جوک جنت میں جائیں گے، گروہ در گروہ جنت میں جائیں گے۔ حتی اذا جاؤہا، جب وہ جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، وفتحت ابوابہا، ان کے لیے جنت کا در کھل جائے گا، جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ وقال لہم خزنتہا سلام علیکم طبتم، تو دروغہ جنت کہے گا سلام تم پر، تو نے زندگی گزارنے کا حق ادا کر دیا۔ فادخلوہا خالدین، بس تو اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو رہے، یہ تیرا گھر ہے، اب کوئی بھی تجھے اس سے نکال نہیں سکتا۔ عزیزان محتشم، ذہن نشین کر لیں، جن لوگوں نے اللہ کے امر میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی الفت میں اور اللہ کے لیے زندگی گزاری ہوگی، وہ اکیلے نہیں بلکہ اکٹھے جنت جائیں گے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ یقول، میرا اللہ کہتا ہے یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پاک اپنے مخلوق کو آوازیں دیں گے، اور مخلوق میں بھی ان لوگوں کو آوازیں دیں گے جو اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنے والے، جو اللہ کی منشا میں، اللہ کی چاہت میں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جنہوں نے اپنا لمحہ لمحہ گزارا ہوگا، اور جو اللہ کی رضا میں جیتے رہے، اللہ کی منشا میں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی سانسیں گزارتے رہے، اور ان کی سانسوں کا تعلق اللہ کی رضا سے جڑا ہوا تھا، تو قدم با قدم اپنے رب کے امر میں رہے، اللہ آواز دے گا قیامت والے دن این المتحابون بے جلالی، جو لوگوں سے محبت بھی کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے دوستی رشتہ داری ناطہ قائم کرتے ہیں تو اللہ کی منشا کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو آپس میں محبت کرتے ہیں، تو ان کی منشا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے، دنیاوی نفع نہیں ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عظمت کے لیے۔ اللہ پاک قیامت والے دن آواز دے گا کہ میری محبت کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے اور میری عظمت اور جلالت کی خاطر این المتحابون بے جلالی، جو میری عظمت اور جلالت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے وہ کہاں ہیں؟ اللہ آواز دے گا ایک دوسرے سے، تو دوستان گرامی قدر وہ کہاں ہیں؟ میں انہیں آج اپنے سائے میں جگہ دوں، الیوم اظلھم فی ظلی، میں آج انہیں اپنے سائے میں، سایہ رحمت میں جگہ دوں۔ اللہ آوازیں دے گا آج میں ان بندوں کو انعام دینا چاہتا ہوں، اپنا سایہ عطا کرنا چاہتا ہوں، سایہ رحمت میں جگہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ کدھر ہیں جو آپس میں محبت بھی کرتے تھے تو ان کی منشا مرضی اللہ کی رضا تھی۔ دوستان گرامی قدر، پھر اللہ کا ارشاد فرماتے ہیں یوم لا ظل الا ظلی، اس کے علاوہ کوئی سایہ اس دن نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں، ایک شخص کسی بستی کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں فرشتہ مل گیا، فرشتہ اس سے سوال کرتا ہے، اللہ پاک نے فرشتہ بھیج دیا کہ تو اس بستی میں کیا کرنے جا رہا ہے؟ کہا میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہا ہوں۔ کہا اس کا تجھ پر کوئی احسان ہے؟ کیا اس نے کچھ تجھ پر کرم کیا ہوا ہے؟ کوئی خاص احسان اتارنے جا رہے ہو جس کو جو تجھ پہ اس نے کیا ہے اس کی تکمیل اور احسان کو اتارنے جا رہے ہو؟ وہ کہے گا نہیں، بس اس سے ملنے کا ارادہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی منشا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں، صرف ایک ہی مقصد ہے کہ میں اس سے ملوں تو میں اپنے رب کو راضی کروں۔ اس سے ملاقات کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کی منشا ہے، اللہ کی محبت کے لیے۔
अल्लाह की उल्फत के लिए, अल्लाह की चाहत के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। दोस्तान गिरामी कदर, फरिश्ता उस वक़्त कहता है कि जिस तरह तू अपने रब से मोहब्बत करता है और अपने रब की मोहब्बत की वजह से लोगों से मोहब्बत करता है, उससे मिलने जा रहा है, तो तेरा रब भी तुझसे मोहब्बत करता है, तेरा रब भी तुझसे मोहब्बत करता है। और अज़ीज़ान मोहतरम, एक हदीस के अल्फाज हैं, इस बात को हज़रत शुएब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप रवायत करते हैं कि आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा दाखला अहलुल जन्नतिल जन्ना, जब जन्नतियों को जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, जन्नत उनका ठिकाना बन जाएगा, जन्नत उनका घर बन जाएगा, तो अल्लाह फिर इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह पूछेगा, काला यक़ूलुल्लाह ताला जल्ला जलालहू, सवाल करेगा उनसे, तुरीदूना शैअन अज़ीदुकुम, क्या तुझे कोई और चीज चाहिए, क्या और कोई किसी बात की तमन्ना है? फयक़ूलूना अलम तुबय्यित वजूहना, वो अर्ज करेंगे, अल्लाह पाक तूने हमारे चेहरों को मुनव्वर कर दिया, हमारे चेहरों को रोशन नहीं किया, ऐ अल्लाह तूने तो हमारे चेहरे रोशन कर दिए। अलम तुदखिलनल जन्नता व तुनज्जिना मिनन नार, तूने हमें जन्नत दी और दोज़ख से हमें निजात अता कर दी, दोज़ख से हमें निजात अता कर दी। तो दोस्ताने गिरामी कदर, अल्लाह पाक इरशाद फरमाएंगे, अल्लाह पाक कहेंगे कि सारे पर्दे उठा दे मेरी खातर, मेरी मोहब्बत में, मेरी उल्फत में अपनी मनमानियां छोड़ने वाले को ये अजर दे दो। फरिश्तों सारे पर्दे हटा दो, सारे हिजाबात उठा दो, इसने दुनिया की लज्जतों को मेरी खातर छोड़ा, ये दिल चाहता था बेईमानियां करे, फ्रॉड करे, लोगों से धोखा करे, अपनी मनमानियां करे, लेकिन मनमानी को छोड़कर मेरी रज़ा की खातर, मेरी खुशनुदी की खातर, मेरी मंशा के लिए इसने अपनी मनमानियों को छोड़ दिया कि मैंने अपने रब के हजूर पेश होना है। कल रोज़े महशर जब अपने रब के हजूर पेश होऊंगा तो मैं भला क्या जवाब दूंगा? तो मुझसे डरता रहा और मेरी खातर इसने दुनिया की मनमानी छोड़ दी, दुनिया की मर्जियों को तर्क किया, दुनिया की रज़ा को छोड़ दिया, दुनिया की चाहत को ठोकर मार दी। इस ठोकर मारने वाले से आज पर्दे उठा दो और उन्हें परवरदिगार अपने दीदार की नेमत अता करेगा कि आज तुम मुझे तको। और फिर मेरे आका जानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत तिलावत करते हैं, ऐसे लोगों के लिए उनके नेक कामों का अजर है, बल्कि उससे भी ज्यादा है। तो दोस्ताने ग्रामी कदर, ज़िंदनशीन कर लें, दुनिया में रहें, जो भी वक़्त गुजारे, जिससे भी वक़्त गुजारे, किसी के साथ दोस्ती का नाता रखें, उल्फत करें, प्यार करें, उसके साथ चलते रहें, कदम ब कदम बढ़ते रहें, किसी पर एहसान करें, किसी के काम आए, किसी के साथ कोई भी मामला तय करें तो आपके हर मामले का तअल्लुक़ अल्लाह की रज़ा हो। किसी के साथ दो कदम चलना भी आपके दिल में अल्लाह की रज़ा हो। किसी पर एहसान करना उसकी ज़ात मकसद ना हो कि यार ये राज़ी हो जाएगा, इसके साथ चलूंगा, इसके तकलीफ रफ़ा करूंगा, इसके साथ तावन करूंगा, मावनत करूंगा तो कल को ये भी काम आएगा। नहीं, किसी से ये तवज्जो इस बात पर मरकूज नहीं करनी कि आज मैं इसका काम कर रहा हूं, कल बदले में ये करेगा। आपके ताल्लुक, आपकी वाबस्तगी, आपका उससे मुंसलिक होना सिर्फ अल्लाह की रज़ा हो। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन मैं उसे अपना साया रहमत अता करूंगा, साया रहमत अता करूंगा। तो दोस्ताने ग्रामी कदर, एक हदीस के अल्फाज हैं, आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इसे मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप रवायत करते हैं, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरा अल्लाह फरमाता है, क़ाल अल्लाह तआला, अल्लाह फरमाता है, वाजबत मुहब्बती लिल मुतहाबीन फ़िय्या वल मुतजालिसीन फ़िय्या वल मुतज़ाविरीन फ़िय्या वल मुतबादिलीन फ़िय्या। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, जो लोग मेरी मोहब्बत की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते रहे, एक दूसरे से ताल्लुक़ वाबस्ता करते रहे, एक दूसरे से उन्होंने अपने आप को मुंसलिक रखा, एक दूसरे से कदम ब कदम चलते रहे, मुंसलिक रहे, राबते में रहे, तो राबते की वजह अल्लाह की रज़ा थी,
अल्लाह की मोहब्बत की खातिर उन्होंने लोगों से मोहब्बत की। लोगों से मोहब्बत, मेरी रज़ा की खातिर, मेरी खातिर मोहब्बत करने वाले और मेरी खातिर मजलिसें सजाने वाले। वो बहाने बहाने से मजलिसें सजाते थे, महफिलें सजाते थे कि अल्लाह का जिक्र मिल के करें। लोगों को दावतें देते थे, पुकारते थे, बिठाते थे, मिलकर उसका जिक्र किया करते थे। आज जो मेरी खातिर मोहब्बत करने वाले, मेरी खातिर महफिलें सजाने वाले और इकट्ठे होने वाले और मेरी खातिर, मेरी रज़ा की खातिर एक दूसरे से मिलने वाले और मेरी रज़ा की खातिर एक दूसरे पर खर्च करने वाले, उन पर मेरी मोहब्बत वाजिब हो गई है कि वो ऐसे लोग हैं जिनसे उनका अल्लाह प्यार ही करता है। अल्लाह पर वाजिब है कि उनसे प्यार करे। उनकी निशानियां अल्लाह बता रहा है कि उनकी निशानियां ये है कि उनका हर काम मेरी रज़ा में होता है। अगर किसी से मोहब्बत भी करना हो तो ये नहीं कि इससे मेरी रिश्तेदारी है, मेरा ताल्लुक है, ये मेरे पड़ोस में रहता है, ये मेरे मोहल्ले का है, ये मेरे गांव का है। नहीं नहीं, जिससे भी ताल्लुक हो, वाबस्तगी हो, रिश्ता कायम हो तो सिर्फ मेरी मोहब्बत की खातिर हो। और अगर कोई महफिल सजाए तो आज तो हम महफिल सजाते हैं साहिबान मोहतशम इस गर्ज से कि लोग देखें, शरीक को जले, शरीक को आग लग जाए, वो देखे तो हैरान हो जाए, बड़े पैसे वाला हो गया यार, इतनी बड़ी महफिल सजाई है। लोग आशश कर उठे, लोग वाह वाह कहें, शोहरत हो। नहीं साहब, शोहरत के लिए नहीं। जब भी महफिल सजानी है तो आपकी महफिल का ताल्लुक भी ताल्लुक बिल्लाह हो, अल्लाह की रज़ा हो, अल्लाह की मंशा हो। और जब एक दूसरे से मुलाकात करें, यार मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, मुलाकात करनी है, तो आपकी मुलाकात भी अल्लाह की रज़ा के लिए हो। और आपका किसी को अता करना, किसी के साथ तावन करना, मामनत करना, खैरात करना, तो खैरात करना भी अल्लाह की रज़ा हो, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह को मनाने के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए और अल्लाह की मंशा के लिए अगर तुम खर्च करोगे तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं जिसके पास ये काम हो वो मेरा महबूब है। और अल्लाह पर लाजिम है कि उस बंदे को अपना महबूब बना ले। मेरे आका जानी फरमाते हैं, और एक हदीस के अल्फाज हैं, हज़रत मुआज़ रिवायत करते हैं, अन्नहु सअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अफज़ल ईमान, आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की गई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अफजल ईमान क्या है? ईमान तो है लेकिन अफजल और बेहतरीन ईमान क्या है? हज़ूर फरमाते काला अन तुहिब्बा लिल्लाह व तुबग़िदा लिल्लाह, तू किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए और किसी से बुग़्ज़ अदावत रखे तो अल्लाह के लिए। और आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं व तुमिला लिसानका फी ज़िक्रिल्लाह, नफरत करे तो अल्लाह के लिए, मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए, अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से हर वक्त मशगूल रखे, हर वक्त अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखे, हर वक्त अपने रब का जिक्र करता रहे, उठते बैठते जागते सोते करवटें बदलते हर हाल में अपने रब के जिक्र में महव रहे, हर वक्त उसी में मसरूफ रहे, हर वक्त अपने रब किबरिया का तज़किरा करता रहे। बहाने बहाने से मेरे आका जानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हर वक्त अपनी जुबान को अपने रब के जिक्र से तर रखे। काला वमाज़ा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके अलावा भी कोई चीज़ है? इसके अलावा भी कोई चीज़ है? आप फरमाते काला वान तुहिब्बा लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिक, जो तुझे अपने लिए पसंद हो वो औरों के लिए पसंद करे। व तकरहा लहुम मा तकरहु लिनफ्सिक, जो तुझे अपने लिए नापसंद हो वो औरों के लिए भी नापसंद करे, जो तुझे अपने लिए पसंद हो वो औरों के लिए भी पसंद करे। तो अज़ीज़ान मोहतरम नौजवानों को जोड़ने के लिए और अपने आप की और सब की इस्लाह के लिए ये सबक दे रहा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, क्या मुझे पसंद है तो कोई मेरी बहन को देखे मेरी इज्जत की तरफ आंख मैली करे? क्या मुझे पसंद है कोई मेरे माल पर डाका डाले? क्या मुझे पसंद है कोई मुझे ज़दोकोब करे, डराए, धमकाए, तकलीफ दे, जुल्म बर्बरियत के बाजार गर्म करे? क्या ये पसंद है? अगर मुझे पसंद नहीं तो औरों के लिए भी वही पसंद करो जो तुझे पसंद है, और औरों के लिए वो नापसंद करो जो तुझे अपने लिए नापसंद है। और मेरे
ये अफजल ईमान है। अफजल ईमान क्या है? अल्लाह की रदा के लिए मोहब्बत करना, अल्लाह की रदा के लिए किसी से ताल्लुक तोड़ देना, हर वक्त उसका जिक्र करते रहना, उसके तज़किरे में मशगूल रहना, हर वक्त अपने रब को याद करते रहना, और वो पसंद करना दूसरों के लिए जो तुझे अपने लिए पसंद हो, और अगर वो जो नापसंद हो वो औरों के लिए भी नापसंद करे। तो ये अफजल ईमान की अलामत है। आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत उबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बयान फरमाते हुए सुना कि मेरी खातर, हुज़ूर फरमाते मेरी खातर, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मेरी खातर मोहब्बत करने वालों के लिए मेरी मोहब्बत बरहक है। वो लोगों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। वो लोगों से प्यार करते हैं, वो लोगों को राज़ी करते हैं अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को मनाने के लिए वो लोगों से तावन करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह कहता है मेरी मोहब्बत उन पर बरहक हो गई। अल्लाह उनसे प्यार करता है जो मेरी खातर सिला रहमी करते हैं, एक दूसरे पर तरस खाते हैं, जुल्म और बरबरियत के बाजार गर्म नहीं करते, हमेशा रहम का मामला रखते हैं, माफ़ी का मामला रखते हैं। दोस्तान ग्रामी कदर, मेरे और आप क्या कहे रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरा अल्लाह कहता है जो बंदा सिला रहमी भी अल्लाह की रदा के लिए करता है, लोगों को माफ़ करता रहता है, तो उस पर मेरी मोहब्बत बरहक है। और मेरी खातर एक दूसरे पर खर्च करने वाले, यानी किसी को कोई ज़रूरत पड़ गई है वो खर्च कर देता है, उसके साथ तावन करता है, तो मेरी खातर खर्च करने वालों पर भी मेरी मोहब्बत बरहक है। और एक दूसरे से मिलने वालों, और मिलने का ताल्लुक भी सिर्फ अल्लाह की रज़ा हो, अल्लाह की चाहत हो, अल्लाह की मंशा हो, अल्लाह को मनाने के लिए वो एक दूसरे से मुलाकात करते हो, उनके मिलने का शौक़ एक ही है, इधर मैं बंदों से मिलूंगा, अल्लाह अपनी मोहब्बत अता करे, अल्लाह मुझ पर राज़ी होगा। तो जो अल्लाह की रज़ा की खातर एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, एक दूसरे के पास बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, गपशप लगाते हैं। आप लगा तो गपशप रहे हैं, लेकिन अल्लाह कहता है मेरी मोहब्बत बरहक हो गई कि इनकी मुलाकात का तल्लक अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की रज़ा है। और एक हदीस के अल्फाज हैं जिसे हज़रत अबू मालिक अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तवील रवायत है, रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, समझो और मालूम कर लो कि अल्लाह ताला के कुछ ऐसे बंदे हैं जो ना नबी होंगे ना शहीद होंगे, ना दर्जाए नबूवत पर हैं ना दर्जाए शहादत पर होंगे, लेकिन शहीद जब देखेंगे, तकेंगे, उनके चेहरे तकेंगे, उनके मुकाम और मर्तबा को देखेंगे, जब शहीद उनके मुरातब को देखेंगे और उनके अल्लाह के यहाँ तकर्रब को देखेंगे, अल्लाह के यहाँ मर्तबे को देखेंगे, यौमल क़ियामा क़यामत वाले दिन देख कर ये मुकाम और मर्तबा नबी और शहीद रशक करेंगे, यार ये मुकाम कहाँ से इन्होंने पाया। उनका मुकाम देख के एक बदवी दूर से आया था, एक अराबी दूर से आया, वो आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने घुटने टेक के बैठ गया और अर्ज करने लग पड़ा और अपने हाथों के इशारे करते हुए कहने लग पड़ा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग ना नबी होंगे और ना शहीद, लेकिन अंबिया और शहीद उनकी मसनद और उनके अल्लाह के साथ तकर्रब को देख के, मकाम और मर्तबा को देख कर रशक करेंगे, उनकी खूबी और हुलिया बताएं। उनकी खूबी क्या है आका जी, हमारे सामने उनका हुलिया बताएं ताकि हम जान सकें कि अल्लाह का तकर्रब और मुकाम और मर्तबा, और ये मुकाम और मर्तबा उसे मिलता है जिसका हाल ये हो, जिसके पास ये अमल हो, ये अंदाज हो, ये असलूबे जिंदगी हो। या रसूलल्लाह हमें हुलिया बताएं, वो क्या करते रहते हैं, उनका काम क्या है। तो अदीदान मोहतशम आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब बदवी ने ये सवाल किया तो हजूर खुश हो गए, फदाह का हजूर मुस्कुरा पड़े, खुश हुए, सवाल तो अच्छा है, सवाल करने पर हजूर मुस्कुराए और आप फरमाते हैं ये वो लोग हैं जिनका कबीला एक नहीं है, कबीला एक नहीं है, ये कोई खूनी रिश्तेदार नहीं, मुख्तलिफ कबीलों से तल्लक रखते हैं, किसी का कोई कबीला है, किसी का कोई कबीला है, कबीला भी एक नहीं है,
मुख्तलिफ कबाइल के लोग होंगे, उनकी आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई भी रिश्तेदारी, किसी भी ताल्लुक से रिश्तेदारी नहीं है। तो रिश्तेदारी भी नहीं, कबाइल भी एक नहीं, कबाइल भी एक नहीं, मुख्तलिफ इलाके हैं, इलाका भी एक नहीं, मुख्तलिफ जगहों से आए हैं। आप फरमाते हैं कबाइल भी एक नहीं, रिश्तेदार भी नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। उनकी उल्फत और उचात और मोहब्बत एक दूसरे से सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए है। वो एक दूसरे के खैर खा हैं, हर वक्त खैर खाई चाहते हैं, एक दूसरे को नफा देते रहते हैं, एक दूसरे के लिए नफा बख्श बने रहते हैं, हर वक्त एक दूसरे की खैर खाई चाहते हैं, हर वक्त खैर खाई के कामों में लगे रहते हैं। अब उनका मकसद रिश्तेदारी पालना नहीं था, कबाइल नहीं था, ना रिश्तेदार थे ना कबीले वाले थे, एक दूसरे से खैर खाई का मामला करते हैं। अल्लाह ताला उनके लिए क़यामत के दिन नूर के मिंबर लगाएगा, चमकते हुए मोतियों वाले मिंबर चमक रहे होंगे, जिन मिंबरों पर वो बैठे होंगे। उनके चेहरे और कपड़े भी नूर बना देगा, कपड़ों से भी नूर चमक रहा होगा, नूर निकल रहा होगा, और मिंबर भी नूर वाले होंगे। बाकी लोग घबरा रहे होंगे, हाल ये होगा माँ छोड़ जाएगी, भाई भाई को छोड़ देगा, रिश्तेदारियां टूट जाएंगी, माँ बेटे की दोजख का इरादा करके बैठ जाएगी, माँ कहेगी बेटे को दोजख में डाल दे और मुझे जन्नत में डाल दे, और एक एक दूसरे से भाग रहा होगा। रिश्तेदारियां दोस्तियां टूट जाएंगी, रिश्तेदारियां दोस्तियां बरकरार नहीं रहेंगी। लेकिन साहिब जिन्होंने ताल्लुक एक दूसरे से अल्लाह की रज़ा के लिए रखा होगा, एक दूसरे से तावन खैर खाई अल्लाह की रज़ा के लिए की होगी, तो उस दिन वो घबराएंगे नहीं, लोग घबराए हुए होंगे। आज क्या बनेगा, लोग डर रहे होंगे, लोग खौफज़दा होंगे, लोग गमगीन होंगे, एक दूसरे की तरफ देखेंगे तो मुख मुड़ जाएंगे, कोई भी एक दूसरे की तरफ रुख नहीं करेगा। लेकिन ये हशाश बशाश लोग होंगे, ये हशाश बशाश होंगे, ये घबराएंगे नहीं। मेरे आका जानी फरमाते हैं यही तो वो लोग हैं जो अल्लाह के वली हैं, या औलिया अल्लाह हैं, जिन्हें ना कोई खौफ होगा और ना कोई गम होगा। एक हदीस के अल्फाज हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर दो बंदे अल्लाह ताला के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करें, यानी अगर दो बंदे आपस में मोहब्बत करें तो अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे से मुलाकात करें, बैठें, गपशप लगाएं, तो उनकी मंशा ये ना हो ये बड़ा आदमी है, ये गरीब आदमी है, इसके साथ ताल्लुक का क्या फ़ायदा है, ये अमीर आदमी है, इससे ताल्लुक का फ़ायदा है, इससे वाबस्तगी रखना काम आएगी, ज़रूरियात ज़िंदगी से है, बहुत सारी ज़रूरियात ये पूरी कर देगा, कल को कोई काम पड़ा तो इससे ताल्लुक का फ़ायदा है। का ताल्लुक किसी और फ़ायदे के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करें। तो जो दो बंदे आपस में मोहब्बत करें तो उनका मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा हो, अल्लाह की मंशा हो, और उनमें एक मशरक में हो और दूसरा मगरब में हो, तो जब क़यामत आएगी तो अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ उन्हें मिला देगा। जो आपस में मोहब्बत करते अल्लाह की रज़ा के लिए, अब एक मशरक में रहने वाला हो, मेरे आका जानी फरमाते हैं, और एक का घर मगरब में हो, लेकिन जब क़यामत बपा होगी लोग एक दूसरे से भाग रहे होंगे, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुम लिबादिन अतुब्बुन, लोग एक दूसरे से नफरत कर चुके होंगे, मुख मोड़ चुके होंगे, लेकिन उस दिन उन लोगों को अल्लाह मिला देगा, वो हाथ में हाथ डाल के जन्नत में जाएंगे, और अल्लाह फरमाएगा ये है वो शख्स, अल्लाह बताएगा दोस्ताने गरामी कदर, ये है वो शख्स, हदीस के अल्फाज हैं, जिससे तू मेरी खातिर मोहब्बत किया करता था, इससे प्यार करता था, इससे तेरी उल्फत थी, याराना था, मोहब्बत थी, तो इससे मोहब्बत करना भी सिर्फ मेरी रज़ा थी, मेरी मंशा था, मेरी चाहत थी, मेरी खुशनुदी के लिए तू इससे मोहब्बत करता था। अब इसके बगैर नहीं, इसके हाथ में हाथ डाल के जन्नत में जा, हाथ में हाथ डाल के जन्नत में जा। और एक हदीस के अल्फाज है जिसे हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बयान करते हैं कि आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन
अल्लाह ताला कुछ ऐसे लोगों को कब्रों से उठाएगा, कब्रों से कुछ लोगों को उठाएगा जिनके चेहरे पर नूर होंगे, चमकते हुए चेहरे होंगे। कब्र का अजाब तो आपने सुन रखा है अज़ीज़ान मोहतरम, ये हाल होगा कि कब्र आपस में इकट्ठी होगी और एक दानी हड्डियां बानी में और बानी हड्डियां दानी में पवस्त हो जाएंगी। लेकिन ये वो लोग होंगे जो अल्लाह की रज़ा के लिए, मंशा के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते होंगे। मेरे आका जानी फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह ताला कुछ ऐसे लोगों को कब्रों से उठाएगा जिनके चेहरे पर नूर होंगे, वो मोतियों के मिंबर पर होंगे, मिंबर भी मोतियों वाला होगा, चमक रहा होगा, लोग उनसे रशक करेंगे। वो ना ही नबी होंगे और ना शुहदा होंगे। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक बदवी घुटनों के बल बैठ गया, घुटनों के बल बैठ के गया और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें उनके मुतल्लक़ बताइए, इरशाद फरमाइए, ताकि हमें भी इस बात का इल्म हो जाए, इस बात का इल्म हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये वो लोग हैं जो लोगों से मोहब्बत अल्लाह की रज़ा के लिए करते थे, मुख्तलिफ कबीलों से तल्लक रखते थे, मुख्तलिफ इलाकों से रहने वाले थे, मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाले थे, लेकिन अल्लाह की याद के लिए, अल्लाह के जिक्र के लिए जमा हो जाते, इकट्ठे हो जाया करते। जब इकट्ठे हो जाया करते तो आओ दोस्तान गिरामी कदर, जो लोग अल्लाह के जिक्र के लिए जमा होते हैं, अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन उनके चेहरों को नूर से भर देगा, नूर से भर देगा। और जिन मिंबरों पर बैठे होंगे वो भी नूर वाले होंगे। आओ आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उनकी ये मंजिलत और ये मुकाम, ये मर्तबा कोई और वजह नहीं, जिस और वजह नहीं, बस एक ही वजह है कि वो जिससे भी मोहब्बत करते हैं सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए करते हैं। उनकी मंशा और चाह सिर्फ अल्लाह की रज़ा है। अज़ीज़ान मोहतरम, मुझे वाक़या याद आ गया, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपके पास दुश्मनाने हुसैन से और कातलाने हुसैन में से एक शख्स आपके यहाँ तशरीफ़ लाता है, आपके घर आता है पनाह लेने के लिए। एक तवील बात है लेकिन मुख्तसर कर रहा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, अब घबराया हुआ था। मुख्तार सक़फ़ी ने जब कहा, मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा कि मैं एक एक को नहीं छोड़ूंगा और हर एक से अपने हुसैन का बदला लूंगा, किसी को जिंदा रहने का हक नहीं दूंगा, हर एक से बदला लूंगा। लोग घबराए हुए थे, लोग डर रहे थे और एक कातिल को पता चला कि अगर पनाह भी देगे तो हुसैन का बेटा देगा। अब अज़ीज़ान मोहतरम, वो भागा भागा हुसैन के बेटे के पास आ गया। था दुश्मन, था कातिल हुसैन, कातिलाने हुसैन में से था और बर्छियां बरसाने वालों में से था, तलवारें चलाने वालों में से था। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में आया और पनाह तलब की। आपने पनाह न दी, सिर्फ पनाह न दी बल्कि खातिर मदारत भी की, खाने पेश किए, पानी पिलाया, दिलासे दिए, मोहब्बत दिखलाई, प्यार किया। जिन्होंने नफरत का इजहार किया था, जिन्होंने पानी बंद किया, असगर जैसी मासूमियत पर भी पानी बंद कर दिया और मोहम्मद के लाशें प्यासे तड़पते रहे। और ज़ैनुल आबिदीन वो शख्सियत हैं, वो हस्ती हैं, वो ज़ात हैं जिनके सामने वाक़या करबला सारा हुआ, जिनके सामने सारी लाशें तड़पती रहीं, जिनके सामने कातिलाने हुसैन ने हुसैन पर हमला किया और एक एक को जानते थे, एक एक ने क्या क्या किया हर एक से बाखबर थे। साहिब, आज कातिलाने हुसैन में से एक आ गया। मैं और आप अपने गिरेबान में झांकें, आज कोई बाप को गाली दे, आज कोई हमसे बदतमीजी कर ले, आज कोई हमें बुरा भला कह दे, तो हम तो सारी जिंदगी नहीं भूलते, हम तो याद रखते हैं, हम उसे नहीं भूलते और कभी भी नाम माफ करने वाली कसम उठा लेते हैं। कुर्बान जाऊं ज़ैनुल आबिदीन, तेरी अजमत पर, तेरी शान शौकत पर, तेरी मोहब्बत पर कुर्बान जाऊं। अब अज़ीज़ान मोहतरम, बाप का कातिल है,
اور شربت پلائے جا رہے ہیں. جنہوں نے پانی بند کیا ان کی خاطر کی خاطر مدارت کی، ان کی پیاس کو بجھایا گیا. جنہوں نے خیمے جلائے ان کو اپنے ہاں پناہ دی. جنہوں نے تکلیفوں کے انبو لگا دیے، تکلیف کی انتہا کی، ہر تکلیف پہنچانے کی کوشش کی اور ہر تکلیف پہنچائی. آج وہ بارگاہ میں آ گیا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ دھکے دیتے، دھتکار دیتے، نفرت کا اظہار کرتے. یہ برا عمل بھی دنیاوی انداز سے نہیں تھا، برا عمل بھی نہیں تھا. قاتلان حسین میں سے تھا. اور حسین کون؟ جنہیں میرے آقا جانی کاندھوں پہ سوار کر کے سیر کرایا کرتے، جن کو میرے آقا جانی اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے اپنی زلفیں تھمایا کرتے. اے حسین، جدھر تیرا دل ہے زلفیں موڑتا جا، مصطفیٰ ادھر مڑتا جائے گا. ان اتبع الا ما یوحی. جو مصطفیٰ اپنی مرضی پر کوئی کام نہیں کرتے تھے، ان کا ہر عمل اللہ کی رضا تھا. آج ایسے لگتا ہے اللہ کی رضا بھی حسین کے ہاتھ میں ہے. جدھر حسین کی مرضی ادھر مصطفیٰ گھوم جا. اگر دانے موڑے دانے مڑ جا، اگر بہانے موڑے تو بائیں طرف مڑ جا. آج حسین کا جدھر دل چاہے ادھر ہو جا. کیوں؟ ایک وقت آنے والا ہے اسی حسین نے ایک ایک کر کے میری رضا کی خاطر، میری محبت کی خاطر، میری چاہت کی خاطر، میری الفت کی خاطر ایک ایک کو لٹا دینا ہے. آج ہی پیغام بتا دے کہ یہ میرا ولی ہے، یہ میرا حسین ہے. عزیزان محتشم، وہ حسین جب میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں آئے تو علی، مولا علی شیر خدا نے نام اور رکھے. پھر حضرت تاجدار رحمت نے بھی نام رکھے. اے علی، تیری اور میری نسبت. آپ نے اپنے چچاؤں کے نام پر نام رکھے. عبداللہ اور جعفر نام رکھا. ایک روایت میں یہ آیا عبداللہ اور جعفر نام رکھا. اپنے چچاؤں پہ نام رکھے. حضور فرماتے ہیں اے علی، تیری میری نسبت ہارون اور موسیٰ جیسی ہے. تو لہذا ان کے نام شبر اور شبیر ہیں. اللہ کو جلال آ گیا، کہا پیغام بھیجا مصطفیٰ، ان کے نام تو میرے پاس ہیں، ان کے ناموں کو تو میں نے پردے میں چھپا رکھا ہے. اس سے پہلے کسی مخلوق کا یہ نام نہیں تھا. ان کا نام حسن اور حسین ہے. وہ حسین دوستان گرامی قدر جو بیمار پڑ جائیں، میرے آقا گھر میں آئیں، حضرت سیدہ پاک کو کہیں، سیدہ پاک کو کہیں میری بیٹی، میرے حسن حسین کو تکلیف نہ ہونے دینا، ان کی طبیعت خراب ہے. آپ نے منت مانی 3 روزوں کی، 3 روزوں کی منت مانی. حسنین کریمین ٹھیک ہو گئے. جن کی بیماری دیکھ کے حضور فرماتے ہیں میرا دل تکلیف میں آ جاتا ہے. جن کو تکلیف دیکھے تو حضور فرماتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے. من احب حسنینا و اباہما و امہما، جو ان سے پیار کرے، جو ان کے بابا سے پیار کرے، جو ان کی اماں سے پیار کرے، اس نے مجھ سے پیار کیا. اور جو ان سے بغض رکھے اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا. وہ حسین اور ان کا قاتل حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں آتا ہے. تو دوستان گرامی قدر، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ دھکے دیتے، دھتکار دیتے اور گھر سے ہٹا دیتے، نفرت کر کے نکال دیتے. کہ نہیں، ہم اپنی نفرتیں پالنے والے نہیں، ہم تو اللہ والے ہیں. ہم تو ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی محبت کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی چاہت کے لیے. ہماری تو کوئی چاہت ہی نہیں، ہماری ایک ہی چاہت ہے، اور وہ چاہت رضا الہی ہے. اللہ کی منشا ہے، اللہ کی رضا ہے. تو آپ نے شربت پلائے، معروف واقعہ ہے، شربت پلائے اور رخصت کیا تحفوں کے ساتھ، جیسے نانا جان کیا کرتے تھے، حضرت سید الانبیاء کیا کرتے تھے. رخصت کیا تحفوں کے ساتھ. تو عزیزان محتشم، وہ گھبرا گیا، تھوڑی دور گیا تو واپس آ گیا اور کہنے لگ پڑا آپ مجھے پہچانے نہیں. اگر پہچان جاتے تو ایسا سلوک نہ کرتے، اس طرح کا معاملہ نہ کرتے. آپ مجھے دھکے دیتے تو دکھار دیتے، پھٹکارتے، نفرت کا اظہار کرتے. آپ نے تو بڑا پیار دیا ہے، آپ نے تو محبت دی ہے، آپ نے تو میرے ساتھ ایسا رویہ کیا، میں آخری دم تک نہیں بھولوں گا اور میں تڑپتا رہوں گا. اتنا پیارا رویہ اور اتنے اچھے لوگ، حضرت آپ پہچانے نہیں.
तो हजरत मुस्कुरा पड़े। का वो तेरा किरदार था जब तेरे पास इक़्तिदार था, जब तेरे पास ताकत थी, जब तेरे पास अरूज था, जब तू तलवार थामे हुए था और हम तलवार के बगैर थे, हम बेटियों के साथ, इज्जतों के साथ थे। तूने जुल्म की इंतहा की। हम जुल्म वाले नहीं, हम बदले वाले नहीं, हम तो मोहब्बत वाले हैं। हम तो अल्लाह की रज़ा के लिए तावन करने वाले हैं। हम तो अल्लाह की मंशा में जीने वाले हैं। हमारी हर सांस का तल्लक अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की खुशनुदी है, अल्लाह की मोहब्बत के लिए हम तो मोहब्बत करते हैं। हम तो मोहब्बत बांटने वाले हैं। वो तेरा किरदार था, ये मुस्तफ़ा के बेटे का किरदार है। आओ अज़ीज़ाने मोहतरम, आपने इस अंदाज से रुखसत किया। बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं। मेरे जद्द अमजद हज़रत इमाम हसन मुज्तबा से एक शख्स जानबूझ के नाज़ेबा अल्फाज कहने लग पड़ा। वो आपने कहा सवारी चाहिए तो मैं तुझे सवारी देता हूँ, अगर बिस्तर की तलब है तो मैं तुझे बिस्तर देता हूँ। वो फिर गालियाँ देता रहा और आप फिर नरमी बरतते रहे, अब फिर ऐसा अंदाज से जवाब देते रहे। वो नाज़ेबा लफ्ज़ कहता रहा और आप मीठे अल्फाज बोलते रहे। वो बुरों की इंतहा उसने कर दी, आपने मीठों की इंतहा कर दी। अज़ीज़ाने मोहतरम, ये नशीन कर ले, वो बुरे कहता कहता थक गया और मान गया कि वाकई आप सच्चे रसूल के बेटे हैं। आओ अज़ीज़ाने मोहतरम, ये अंदाज अपना लीजिए। जीना है तो सिर्फ अल्लाह के लिए, जिंदगी का सफर गुजारना है तो अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करें। और एक हदीस के अल्फाज हैं कि जो बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करता है तो अल्लाह की मोहब्बत उस पर वाजिब हो जाती है। और हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, अल्लाह ताला की मोहब्बत और उल्फत में परवान चढ़ने वाले नौजवानों की 3 निशानियां। कितनी निशानियां? आप फरमाते हैं नौजवानों की 3 निशानियां जो अल्लाह की मोहब्बत में और अल्लाह की उल्फत में अपनी जवानियों को परवान चढ़ाते हैं, जिनका जीना मरना अल्लाह की रज़ा के लिए है, जो हर वक्त अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जिनके हर अमल का तल्लक अल्लाह की मोहब्बत से है। उनकी निशानियां 3 बताई। और आप फरमाते हैं पहली निशानी ये, वो बगैर किसी डर के, खौफ के, लालच के, हिरस के वो लोगों से मोहब्बत करते हैं, वफा करते हैं, बेवफाइयाँ नहीं करते, हमेशा वफा का पहलू रखते हैं। और उनका मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की मोहब्बत है। वो किसी से भी कोई लालच रख कर मोहब्बत नहीं करते, किससे कोई गर्ज नहीं रखते और किसी से कोई वफा नहीं चाहते। वो जो भी करते हैं बेखौफ होके, न डर होके लोगों से वफा करते हैं। और उनकी सिर्फ मकसद में, उनके दिल में आरजू तमन्ना बस यही है कि अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत के लिए वो करते हैं। और बगैर मुबालगे के तारीफ करते हैं, मुबालगे से काम नहीं लेते। अगर किसी की तारीफ भी करते हैं तो जो लायके तारीफ होता है, जो है इस बात का हकदार, वाकई हकदार है, वो खुशामद नहीं करते, मुबालगे आराई से काम नहीं लेते, बल्कि जब भी किसी की तारीफ करते हैं मुबालगे को निकाल कर सच्ची तारीफ करते हैं और बगैर सवाल किए। तीसरी निशानी, जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं वो बगैर सवाल किए अता करते हैं। मुझे हजरत मौला अली शेर खुदा करमुल्लाह ताला वजुल करीम का एक वाक़या याद आ गया। अज़ीज़ाने मोहतरम, हजरत इमाम हसन मुज्तबा फरमाते हैं, मेरे बाबा जानी रुखसत हुए इस दुनिया से 3 दिन गुजर गए। मैं तीसरे दिन बाद निकला तो एक गार के धाने से गुजरा तो कराने की आवाज़ आई, तकलीफ में कोई है ऐसी आवाज़ आ रही थी। तो मैं गार के अंदर चला गया तो मैं क्या देखता हूँ, एक अपाज आदमी है, न हाथ हैं न पैर हैं। मैं तड़प उठा, वो रो रहा था। मैंने रोने का सबब मैं पूछता, वो खुद ही बोल उठा। उसने कहा मेरे रोने का मकसद ये ना लेना कि मेरे हाथ नहीं हैं और ये भी ना लेना कि मेरे पास पाँव भी नहीं। आप फरमाते हैं फिर रो क्यों रहे हो? का रोना सिर्फ इस बात का है कि मेरा माही 3 दिन हो गए नहीं आया, 3 दिन हो गए मेरा माही नहीं आया, मेरा महबूब मुझे मिलने नहीं आया।
मुझसे प्यार करने वाला मुझसे मिलने नहीं आया, या तो किसी मुश्किल में है, किसी मुश्किल में है, या दुनिया को छोड़ चुके हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, आपने हुज्जत तमाम की, हुलिया पूछा तो उसने हुलिया बताया, कहा वो कोई और नहीं था, मेरा बाबा अली था, मेरा बाबा अली था। और जब तक मेरी सांस में सांस है, जिस तरह मेरे बाबा तेरी खिदमत किया करते थे, मैं आज के बाद तेरी खिदमत किया। ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने हमेशा अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत की। ये वाक़या तो मारूफ है। आप एक जंग में, हजरत मौला अली शेर खुदा एक जंग में हैं और काफिर आपकी तलवार के नीचे है, आपके पाँव के नीचे है, गिर गया, तलवार यूं उठाई तो उसने आपकी तरफ थूक दिया। जब थूका तो आपने तलवार म्यान में रख ली, तो वो बोलने लग पड़ा और गुफ्तगू करता है कि अली, ये थूकने का मकसद तलवार को म्यान में लेके जाने का नहीं था कि आप तलवार को म्यान में लेके जाएंगे, इसलिए थूका था। थूकने का मकसद तो ये था, इरादा ये था कि मैं ऐसा नादेबा अमल करूं जिसकी वजह से आप मुश्तइल हूं, गुस्से में आए और एक ही झटके में मेरा काम तमाम कर दे और मुझे ज़रबे लगा लगा के ना मारे, तकलीफ दे के ना मारे, अजियतें पहुंचा के ना मारे। तो आप फरमाते हैं ये जो तलवार है, जो अली की तलवार है, ये कभी अली के लिए नहीं चली, ये जब भी चली है उसकी मोहब्बत में चली है, ये अल्लाह की मोहब्बत में चलती है, ये अली के लिए नहीं है, ये अल्लाह की रदा के लिए है। इसलिए तो दोस्ताने ग्रामी कदर, आप देख लें, जंगे बदर है तो सुपरमैन अली है, जंगे औद है तो सुपरमैन अली है। जिस जंग में भी मेरे अली, दोस्ताने खंदक का सुपरमैन अली है। तो अली की तलवार जब भी चली है तो अल्लाह की रजा के लिए चली है। खैबर का ताज अली के सर पे है, जो इतना बहादुर हो, जब उसकी तरफ थूक दिया जाए, तलवार चलने की बजाय म्यान में आ जाए, अली की तलवार ये सबक दे गई, लोगों जब भी कोई जुल्म करे, बर्बरियत करे किसी पर, तो बदला लो, उस जालिम को नीचा कर दो, उसको पस्त कर दो, उसको नेस्तो नाबूद कर दो। लेकिन याद रखो, जब भी तलवार, अली की मोहब्बत के दाम भरने वालों, अली का पैगाम सुनते जाओ, अली की तलवार जब भी चली है अल्लाह की रजा के लिए चली है। जो अली से प्यार करता है, वो जिससे भी मोहब्बत करे, वो अल्लाह की रजा के लिए करे, अल्लाह की मंशा के लिए करे। आओ अज़ीज़ाने मोहतरम जहन नशीन कर लें। तो आप फरमाते हैं उनकी तीसरी निशानी ये है, वो अता करें मारूफ करके, वो अता करें तो बिन मांगे दें, मांगने के बगैर अता कर दें। और हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मोहब्बत के बारे में पूछा गया, जब किसी ने आपसे सवाल किया कि मोहब्बत क्या है, तो आप फरमाते हैं ये कोई मखलूक की तालीम नहीं है, ये किसी स्कूल कॉलेज की तालीम नहीं, ये किसी मदरसे की तालीम नहीं, ये मखलूक की तालीम है ही नहीं, इसका नाम मोहब्बत है, बल्कि ये तो हक ताला के तोहफों में से एक तोहफा है जिसको नसीब हो जाए। आओ अज़ीज़ाने मोहतरम से नशीन कर लें, ये तो अल्लाह के तोहफों में से तोहफा है और ये बहुत बड़ा फजल है जिसको मेरे रब की मोहब्बत नसीब हो जाए। और हजरत याह्या बिन मुआज रादी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, जिस कदर बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है, यानी तुम अल्लाह से जितनी ज्यादा मोहब्बत करोगे, इधर तुम अपने दिल को अपने रब से जोड़ोगे, लोगों के दिलों को वो तुझसे जोड़ देगा। तुम अल्लाह से मोहब्बत करोगे, लोग तुझसे मोहब्बत करेंगे। और जिस कदर तुम अल्लाह का खौफ खाओगे और अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करोगे, अल्लाह का खौफ अपने अंदर पैदा करोगे, जिस तरह तुम अपने अंदर खौफ पैदा करोगे, अल्लाह बंदों के दिल में तुम्हारा खौफ पैदा कर देगा। और आप फरमाते हैं, जिस कदर तुम अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करोगे, अल्लाह के अमर पर चलोगे, अल्लाह के अमर में जिंदगी गुजारोगे, इधर तुम अल्लाह के अमर में जिंदगी गुजारोगे, अल्लाह के अमर पर जिंदगी गुजारोगे,
तुम अल्लाह के अहकाम मानोगे, अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करोगे, और जो उसकी रजा है, जो उसका अमर है, जो तुझे हुक्म दिया अल्लाह ने, तुम हर हुक्म को बजा लाओगे, तो मखलूक खुदा तेरे हुक्मों की तामील करेगी। आओ अदीदा ने मोहतशम ज़हनशीन कर लें, आज के बाद हमने जिससे भी मोहब्बत करनी है तो उसका मकसद रिश्तेदारी नहीं रखनी, दौलत मता नहीं देखना, कबीला नहीं देखना, इलाका नहीं देखना। मुख्तलिफ इलाकों से वो लोग एक दूसरे से ताल्लुक वबस्तगी मोहब्बत रखते हैं, तो उसकी वजह रिश्तेदारी नहीं, रिश्तेदारी की वजह से एक दूसरे से प्यार नहीं करते, कबीला एक होने की वजह से प्यार नहीं करते, इलाका एक होने की वजह से प्यार नहीं करते। मेरे आका जानी फरमाते इलाके भी मुख्तलिफ हैं, रिश्तेदारी भी कोई नहीं, कबीला भी एक नहीं, दूर दराज से चल के एक दूसरे के पास बैठते हैं, मुलाकात करते हैं, और उनकी मुलाकात का मिलने का मकसद एक ही है कि वो अल्लाह को मनाने के लिए आए हैं, अल्लाह की रजा के लिए जमा होते हैं और अल्लाह के तज़किरे के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो लोग अल्लाह के तज़किरे के लिए इकट्ठे होते हैं, कल क़यामत का दिन होगा जब किसी को साया नसीब नहीं होगा, अल्लाह उन्हें अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाए। अल्लाह पाक मुझे, आपको, हम सबको काबिल अमल बातों पर तौफीक अमल अता फरमाए। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि।